રાજધાની દિલ્હીમાં અત્યારે ઘમાસાણ ચાલી રહ્યું છે। એક બાજુ સંસદની અંદર જ્યારે વિદ્યાર્થીઓના એટલે કે નીટના પેપર લીકની વાત હોય કે પછી શિક્ષણ વ્યવસ્થાની વાત હોય, વિપક્ષના નેતા લડ્યા। બીજી બાજુ પ્રદર્શનકારીઓ જે છે એ જેમ જેમ સંસદની નજીક પહોંચ્યા એમ આંદોલન વધારે આક્રમક બન્યું। પોલીસ સાથેના ઘર્ષણના દ્રશ્ય સામે આવ્યા, ટીયર ગેસ છોડવામાં આવ્યા, તંત્રએ બધા જ પ્રદર્શનકારીઓને ખૂબ માર્યા એવા વિડીયો સામે આવ્યા। અનેક લોકો ઘાયલ થયા, જેમાં પોલીસ પણ ઘાયલ થયા। એ બધું જ થઈ રહ્યું હતું ત્યારે રાજનેતા પણ હવે એટલે વિપક્ષના જેટલા પણ નેતા છે એ પણ હવે મંચ પર આવીને બોલી રહ્યા છે કે દિલ્હી પોલીસ જે કરી રહી છે ખોટું છે। અત્યારે જ્યારે સંસદના ચોમાસા સત્રની શરૂઆત હતી, પહેલા જ દિવસે ચર્ચા થવી જોઈતી હતી પણ એ ચર્ચા ન થઈ, હોબાળો થયો। જે રીતના વિપક્ષના નેતા પ્લેકાર્ડ લઈ અને વિરોધ કરી રહ્યા હતા, વેલમાં આવી ગયા, એના પછી સંસદ સ્થગિત કરી દેવામાં આવ્યું। રાજ્યસભામાં પણ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો કે અત્યારે જંતર મંતર પર જેટલા પણ વિદ્યાર્થીઓ, જેટલા પણ અત્યારના યુવાનો જે છે એ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે એમની સાથે ખોટું થઈ રહ્યું છે। અને પછી જે આંદોલનને આખું એવું કહેવાય કે ચિત્ર બદલાઈ ગયું આંદોલનનું। જે શાંતિપૂર્ણ આંદોલન હતું ત્યાં ઘર્ષણ દેખાયું અને પછી એક નેતાએ દિલ્હી પોલીસ અને સાથે જ જેટલા પણ પ્રદર્શનકારીઓ છે એમની સાથે ખોટું થયું છે એ બોલવા માટે આવ્યા। દિલ્હી પોલીસ ખોટું કરી રહી છે એના માટે વિપક્ષના નેતા એક પછી એક વિડીયો બનાવી રહ્યા છે, જેમાં અરવિંદ કેજરીવાલથી લઈ અને ડિમ્પલ યાદવથી લઈને બધા જ લોકો, અખિલેશ યાદવ અને બીજા જેટલા પણ વિપક્ષના નેતા છે એ બધા જ લોકો એક જ વાત કરી રહ્યા છે કે આ જેટલા પણ ઉમેદવાર છે એમની વાત સાંભળવામાં આવે, જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે એમની વાત સાંભળવામાં આવે અને આંદોલનમાં એ લોકોને આટલા કેમ મારવામાં આવે છે। સરકાર સંવાદ નહીં કરે ત્યાં સુધી કોઈ ઉકેલ નહીં આવે। જેપી નડ્ડા સાથે પ્રવક્તાઓની વાતચીત થઈ ગઈ છે। સીજેપીના 2 પ્રવક્તા મળવા માટે ગયા હતા પ્રદર્શનકારી અને જેપી નડ્ડાની વાતચીત થઈ છે। એના પછી પ્રદર્શનકારીએ આખી એક પ્રતિક્રિયા પોતાની આપી છે, જેમાં એવું કહ્યું છે કે અમારી 2 વાર વાતચીત થઈ છે, એક લેખિતમાં અને એક મૌખિકમાં। અમે અમારા 3 મુદ્દા મૂક્યા છે। હવે એ જે માંગણી સાથે આંદોલન કરી રહ્યા હતા એટલે કે એ જે ઉપવાસ પર ઉતર્યા હતા એ માંગણી એક જ હતી કે શિક્ષણ મંત્રી રાજીનામું આપી દે। માંગણી સ્વીકારાય છે કે કેમ, કે પછી સરકાર શું નિર્ણય લે છે પછી જોવાનું રહ્યું, પણ અત્યારે તો વિપક્ષના નેતા કેવી રીતના समर्थन आपे छे आने ते जुओ। आप लोगों की जेपी नड्डा जी से मीटिंग हुई है, कितने राउंड की मीटिंग हुई, क्या डिसाइड हुआ? देखिए 2 बार हम लोग जेपी नड्डा जी से मिले। हम लोग 12 बजे यहाँ पे आए थे एंड हम लोग की मीटिंग करीब 2:15 2:30 बजे हुई। एंड मीटिंग में हम लोगों ने यही बोला कि हमारे 3 डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए एंड जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसमें उनको एक वीडियो बनाने का अलाउ किया जाए। वो वीडियो में यही हो कि वो अपील करे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 2 हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से या तो वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। और तीसरा जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। ये डिमांड्स को लेके हम जेपी नड्डा जी के पास गए। उन्होंने ही हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हैं हमारे। थैंक यू मैम। दोस्तों मैं पंजाब में हूं अभी और इस टाइम मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि कितने ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं। पूरा कनॉट प्लेस भर गया है, जनपथ भर गया है, जंतर मंतर भर गया है। हजारों लाखों की संख्या में युवा पूरे देश भर से आए हुए हैं और सरकार इनके ऊपर पूरे अपनी दमन शक्ति इस्तेमाल कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, मार रही है इनको। इंटरनेट बंद कर दिया उधर, उनको संसद जाने से रोका जा रहा है। ये गलत है। युवा आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? पहले आप इनके पेपर लीक करा देते हो, फिर पेपर दोबारा करा दे तो उसमें पूरा इवैल्यूएशन गड़बड़ हो जाता है। वो शिकायत पे शिकायत करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। आखिर बच्चे जाएं कहाँ? उनका तो आपने भविष्य बर्बाद कर दिया। अब जब वो आप अपने न्याय मांगने के लिए सड़क पे उतरते हैं तो आप उन पे लाठीचार्ज कराते हो। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। बच्चों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि बच्चों के गुस्से को संभालिए, नहीं तो ये आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। बच्चों के साथ बैठ के बात करो। हमारे बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ बैठ के बात क्यों नहीं करते? इतना क्यों अहंकार है? मेरे साथ पंजाब के भगवंत मान साहब भी हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। 1 मिनट। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं ये किताब मेरी जिंदगी बदल देगी।
ये किताब मेरे परिवार का भविष्य बदल देगी। मैं किताब पढ़ूंगा। सुबह सुबह 3 बजे का अलार्म लगाकर बच्चे बैठते हैं, सिटिंग 14-14 घंटे की सिटिंग होती है, तब जाके कहीं वो नीट का एग्जाम की तैयारी करते हैं। अब एक दिन पता चले 2 दिन पहले जी वो तो पेपर लीक हो गया, वो तो बड़े बड़े जो अमीर बंदे थे उन्होंने पेपर खरीद लिया, उन्हीं के बच्चे आएंगे। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। मैं जंतर मंतर पे जो भी इनका हमारे स्टूडेंट्स का जो प्रदर्शन है मैं उसकी सपोर्ट करता हूं। हम एक साथ हैं। जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। को मारा गया है आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी, उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे। गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है। और जहां रूल होता है कि आपको टांगों पे मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। ये सीधे आघात हमारी भारत माता के सीने पे इन लोगों ने किया है। आज हमारी डिमांड है कि ये प्रधान को हटाए, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाए, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले, अकाउंटेबिलिटी दिखाए। अगर आपको एक मेल पुलिस ने बिटिया बता रही है, फीमेल बिटिया के कपड़े फाड़े हैं, ये है आपका नया भारत जहाँ बिटियाओं के कपड़े, इस बिटिया के भी कपड़े किसी और के कपड़े फाड़े गए हैं। हमारे साथ बहुत बच्चे मिले जिनके कपड़े फटे हैं। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और इतनी अहंकारी, इतनी निर्दयी, इतनी कठोर सरकार शायद ही भारत के इतिहास में हो कि निहत्थे बच्चों पे इन लोगों ने डंडे चलाए हैं। ये बच्चों का जोश था आज यहाँ, और मैं उन सभी बच्चों को सलाम करना चाहूंगी जिन्होंने इतना मतलब जोश दिखाया, इतने भाव के साथ आए यहाँ पे, अपनी बात को रखने आए ना। यहाँ पे दूर दूर से आए, प्रोटेस्ट करने आए, शांतिपूर्ण तरीके से आए ना। ये लोग चाहते हैं कि संविधान से देश नहीं चलेगा, ये आरएसएस की विचारधारा से देश चलाना चाहते हैं। प्रोटेस्ट का हम अभी पार्लियामेंट जा रहे हैं, संसद में पूरे जोर शोर से इस आवाज को उठाएंगे और उसके बाद फिर जंतर मंतर भी फिर से जाने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद लगातार पहले भी जंतर मंतर गए, और आज जब लोकसभा में सवाल जब उठाना था, सवाल उठा करके लोकसभा का एडजॉर्न करके उस समय फिर मौके पे पहुंचे। जो देखा और जो व्यवहार सरकार का और पुलिस का था, लाठी चलाना, आंसू गैस के गोले चलवाना, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस आकर के छात्रों को, युवाओं के साथ जो व्यवहार किया है, सुनने में आ रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिक टॉर्च भी थी या डंडी, जो भी बोलेंगे उसको। लोगों को चोट लगी है, युवाओं के बड़े पैमाने पे चोट लगी है, बड़े पैमाने पे घायल हुए हैं। सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि छात्र नौजवान इतनी बड़ी संख्या में आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा फेलियर है, और किसी फेलियर के लिए ही आए हैं लोग। आप नीट की परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, और जो परीक्षा कराई जिस तरह से धांधली हुई है, सब बीजेपी के लोग शामिल हैं उसमें, और दोबारा भी परीक्षा कराई, उस पर भी प्रश्न लग रहे हैं। तो आगे क्या, पिछले इतने वर्षों से छात्र नौजवान और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। वही गुस्सा दिखाई दे रहा है, वही इंकलाब का नारा बन रहा है, वही एकजुटता दिखाई दे रही है। इसीलिए इतने बड़े पैमाने पे देश के युवा यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कल भी लोकसभा में जो आज घटना हुई है वो हम लोग उठाएंगे। समाजवादी पार्टी का